Okay, so quickly I'm going to explain you this whole 100 gram protein, 80 gram, 120, 130 could be anything but 100 gram का example लेते हैं क्योंकि simple है. That's about it. 5 minute में I'll be able to show you a road map जो कि actually चीज़ों को simplify कर देगा, right? And that's what we are gonna discuss here. तो सबसे पहली चीज़ कि सबसे इसको basically हम dissect कर सकते हैं that okay let's keep 40 gram in breakfast, let's keep lunch 30 gram and dinner 30 gram. Now if that's the demand, what we have done over the course of time that we have made this whole 100 gram like as a big task, but I work with people outside of India as well. Believe me when I say this 100 gram is usually not even in the equation, like because of the cultural difference, because of the food quality, because of the kind of items they have readily available, it becomes extremely easy to consume 150 gram by default. So that's one of the important things which we have to understand, that according to our culture, our upbringing, the kind of food choices we have, our self belief, self pre-imposed belief, 100 grams seems like a challenge, but it's not. If you can just optimize for the things which is our leverage, we can do much better. So you can see three portions and 100 gram is pretty sorted, so it's not that difficult. Similarly, the one of the key factor here is the way we design our plate. So if you notice here, primarily हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच और डिनर हो, कार्ब्स ही सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ही कम होता है, लाइक दिस entirety of the thing. And we have to just switch it. We have to ask in each and every meal, where is our protein, right? So for each meal, if you'll ask yourself, where is my protein in the plate, and you'll start from this orange portion, right? तो सबसे पहले उसको अगर आप फिलअप करते हो तो ओवरऑल प्लेट में जगह जो बचती है उसमें हम अपना फैट, डाइटरी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों को रखें तो वो ज़्यादा सेंस बनाता है रादर देन वी बॉम्बार्डिंग आर प्लेट विथ अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, एज आई मैंशन, दिस होल थिंग इज़ लाइक मैथ के अकॉर्डिंग बना लेना है, बिकॉज इफ़ यू आर स्टार्टिंग आर डे विथ 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो होगा क्या कि ओवरऑल जो डे है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा ना. इसमें अगर हम देखें like how we can get 30 gram, so like whey protein you can get 30 gram from one heaping scoop. So if you're starting your day with a protein, जो कि मैं बोलता हूँ कि that's one of the hack. If you can have whey protein तो कुक भी नहीं करना पड़ेगा, एक हीपिंग स्कूप निकाला, 30 ग्राम पूरा हो गया. एंड उसके साथ हो सकता है आपने बेसन चीला लिया हो सकता है ऐसे कुछ आइटम्स लिए हों, वहाँ से कंबाइन होकर वो 40 ग्राम आसानी से हो जाता है. सिमिलरली इन लंच यू कैन ऐड 150 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, 170, 200 भी हो सकता है. ये थोड़ा बहुत 30 ग्राम के आसपास जाएगा. जैसे लो फैट पनीर है, कुछ ब्रांड्स आपको 25 ग्राम ऑर्डर करते हैं. जनरल प्रोटीन्स, जनरल पनीर में आपको 20 ग्राम मिलता है, सो आप उसको 120 ग्राम, 130 ग्राम बना सकते हो. सो इतने में ही आपका 100 ग्राम पूरा हो गया, राइट. यू कैन ऐड 4 होल एग्स, तो ठीक है, 24 हो गया, 5 कर देते हो तो 30 हो जाएगा. बट आई एम नॉट जस्ट अकाउंटिंग फॉर दीज, इसके साथ आप डिफरेंट चीज़ें भी कंज्यूम करते हो, राइट. कि जैसे मैंने बोला कि अगर एक हमने एंकर बना लिया अपने प्लेट के बीच में कि वी हैव दिस like main source as a protein, for example chicken breast, low fat paneer or whey protein, right. And then uske around we can place our a bit of rice, 150 to 200 gram cooked, or maybe 2 roti, whatever is cooked, right. The idea is to not bombard it with a lot of carbohydrates कि 3 रोटी भी रख ली, राइस भी ले लिया, दाल भी ले लिया, एंड प्रोटीन के नाम पे दाल है. सो दैट्स वाई वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. एंड सिमिलरली ग्रीक योगर्ट अगर है आपके पास, जनरली 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट ले लेते हो, उसके साथ यू कैन हैव योर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज एज अ स्नैक एज वेल. तो सी, मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 100 ग्राम कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं. तो जब तक इस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो ऐसे दिमाग में बड़ा चीज़ बन के बैठा रहता है कि अरे क्या ही करना पड़ेगा. नाउ a lot of time people can be like कि डेली कैसे खाना है, 4 लोगों को खाना है तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा. यस, बढ़ेगा, कॉस्ट तो बढ़ेगा. एंड दैट्स वाई आई एम ऑलरेडी अज्यूमिंग दिस कि ठीक है, आप जहाँ भी हो अपने फिटनेस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो. आप फाइनेंशली वेल टू डू हो या फिर स्ट्रगल कर रहे हो, कुड बी एनीथिंग, बट वेर एवर यू आर यू कुड ऑप्टिमाइज. तो हो सकता है आप 30 ग्राम कंज्यूम कर रहे हो, उसको 50, 60, 70 लेके जाओ. बट हियर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू द पीपल हु कैन डू दिस, राइट. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने लिए इतना लेवरेज क्रिएट कर लेते हो कि यू स्टार्ट टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन डू, जिससे हमारी ये ऑपरेटिंग व्हीकल, ये बॉडी बेटर हो. बिकॉज एट द एंड ऑफ दैट्स वाई वी आर अर्निंग, राइट. एल्स व्हाट्स द पॉइंट, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर देयर, बट अगर इसका काम ही नहीं है, अगर ये सही से ऑपरेट नहीं कर रहा, सो देन देयर इज नो पॉइंट. सो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम माइंडसेट ऐसा शिफ्ट हो जाता है कि लेट्स इन्वेस्ट इन टू दिस, ये उनके लिए है. तो फाइनेंशियल कॉस्ट एंड एफर्ट तो बढ़ता है, लेकिन हाई क्वालिटी फूड एंड बेटरमेंट को आप अपनी तरफ पुल कर पाते हो.
सो अगेन द सेम थिंग, क्या 100 ग्राम अगर लेके स्टार्ट कर रहे हो तो इसको आप इजीली डाइसेक्ट कर सकते हो 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, एंड वो बहुत ईजी हो जाएगा. ना व्हाट आई आस्क यू टू डू कि एटलीस्ट इसको 30 डेज़ के लिए तो आप फॉलो करो. 30 डेज गिव योर सेल्फ टू ट्रैक, टू इवेल्यूएट, टू ऐड, टू मैच एंड मेक फूड बंडल्स. सो जनरली मैं क्या बोलता हूँ कि यू कैन थिंक कि ठीक है, लेट्स से हमने 8 to 10 फूड आइटम्स का एक बंडल बना लिया कि स्टार्टिंग आर डे विद लेट्स से बेसन का चीला हो गया, वे प्रोटीन हो गया, एंड या दीज आर सफिशिएंट. सिमिलरली इन योर लंच यू कैन हैव 150 to 200 gram of chicken breast, you can have rice, you can have salads, you can have seasonal vegetables. Same goes for dinner, either again you can have 100 gram of chicken or you can have low fat paneer along with the roti. Similarly the idea here is that ऐसे आप different bundles बना लो. टोफू हो गया, that is also there. There are multiple, जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो, एंड देन prioritize them right in a right portion size and do them for next 30 day and see how you feel. You will start feeling much better, energy level बहुत sustained रहेगा. It becomes easier to sustain the deficit because you will feel fuller, right? आपकी strength recovery सब better होती है. So जो overall deficit हम create करते हैं कि कई बार क्या होता है कि we are eating food but we are not feeling satiated enough, because of which hunger increases and that increases your stress level, and then फिर आप different चीज़ें snacks के लिए reach out करते हो. But when you are providing your body an environment जो कि ऑलरेडी वो सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, सो इट बिकम्स ईजियर टू स्टिक टू द प्लान एंड गेट रिजल्ट. सो या दैट्स व्हाट 6 मिनट हो गया है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू convey in and out. It's easier, just systemize it in a way where you are like, okay, ये चीट सीट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसमें लाइक 20 ग्राम 10 ग्राम इधर उधर करोगे तो आपका 100-120 ग्राम पूरा हो जाएगा. एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड यू विल बी एबल टू सी वेरी गुड रिजल्ट्स, right? So I'll see you in the next one. Let me know if this is the style you like. I'll be able to communicate better as well. Similarly, what else was there? Yeah, so there was nothing else. I was thinking कुछ और ऐड करा है, but yeah, I'll see you in the next one. Have a good one. If you have any queries, drop in the comments and I'll be able to answer you.